Hello, dear students. This is Dr. Muhammad Ali over here, and we had an introduction in the previous uh, interaction. And today I am recording this video for you as a first lecture. And in this lecture, I am going to give you a brief introduction because, as was discussed in the previous uh, interaction, I had to discuss the performance parameters, okay, that are required to understand the power electronics or power electronics voltages and currents. So before that, I want to give you a brief introduction on why we require power electronic converters, and more importantly, what are the types of switches that are being used or that we require in power electronic conversion. Of course, in the first unit, you must have studied about the physics of the switches, how they perform, and what are their non-idealities basically. So here what we are going to do is we are going to do a brief discussion. So let me begin. Why do we need why we at all need power energy conversion? And that is the big question. The main reason is that there is a mismatch between the supplies and the loads. That means, for example, if you see over here, the power supplies that are normally available to us in our households are 230 volts, 50 hertz, single phase. And if you are taking three phase, it is 400 volts, 50 hertz, and three phase. Okay. In US, there is a system of 110 volts and 60 hertz, right? And you must have studied all this in your first year course. Why do we need what is the difference between this supply and this supply, why there is such a difference. So now here, in terms of DC, we are having batteries, okay, we are having batteries 12 volt, 48 volts, etc. And of course nowadays we are having alternate sources like solar, wind, etc. Now, and the loads that are available are again single phase or three phase. Okay, like for example, we have single phase machines. Sorry about this. We have single phase machines, three phase machines, and we need to control the speed of those machines. And in order to control those machines, what we require is we need to vary the voltage and sometimes and also the frequency. So by using this, we are able to for this we need power energy conversion. Now again, if we are having DC source, DC motors, then again we need to vary the DC voltage at the input terminal for the speed regulation. Okay, and then we have low voltage devices, for example ICs, microprocessors, and the processors of our laptops, computers, etc., that draw a very low voltage of 15 volt supply. We need low voltage supplies like 15 volts, 5 volt, 3.3 volt, etc. Okay, there's another type of appliances that are used in medical sciences, like for example X-rays, we use scanners. These type of supplies basically, these types of loads basically require or they extract pulse type of power. Okay, तो आपने देखा कि ये जो सोर्स अवेलेबल है और जो लोड है हमारे पास, इन दोनों के बीच में काफी अंतर है. So in order to remove this basic difference, what we do is we employ power electronic converters. Okay, लेकिन आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ठीक है, चलो AC को DC में कन्वर्ट करना है तो हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, DC को AC में कन्वर्ट करना है, we require inversion basically. लेकिन अगर मेरे पास DC अवेलेबल है तो दूसरा DC उसी के जरिए से बना लिया जाए, या AC अवेलेबल तो दूसरे लेवल के AC सप्लाई जैसा हमें लोड का रिक्वायरमेंट है वो बना लिया जाए. लेकिन इशू ये है कि देयर इज नो DC ट्रांसफार्मर्स, देयर आर नो DC ट्रांसफार्मर्स. क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस है दैट इज अवेलेबल फॉर AC सप्लाईज ओनली, कि हम स्टेप अप कर सकते हैं वोल्टेज को, स्टेप डाउन कर सकते हैं फॉर AC ओनली. तो हमारे पास DC सप्लाई, DC ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जिसको हम अगर इनपुट साइड पे DC देंगे तो आउटपुट पे हमें हायर वोल्टेज ऑफ DC मिल जाए या लोअर वोल्टेज ऑफ DC मिल जाए. ऐसी हमारे पास AC बैटरीज नहीं है. ओके, हाँ, जहाँ पे हम एनर्जी को स्टोर कर सकें. ठीक है, समटाइम्स रिक्वायर DC supplies because DC can be stored in terms of batteries. Okay,
तो ये जो चीज है ये कन्वीनियंस अवेलेबल है फॉर डीसी ओनली, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी गो फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन. ओके, सो किसी ने सही कहा कि जो है ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी ट्रांसफॉर्मर्स ना होने की वजह से और एसी बैटरीज ना होने की वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन की जरूरत पड़ी है. So in power electronic converters, basically there is one side is the input, other side is the output. The power on the input side and the power at the output side will be equal. Okay. यहाँ पे इस साइड का वोल्टेज एंड करंट, इस साइड का वोल्टेज एंड करंट में हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. बेसिकली इफ यू आर हैविंग इनपुट एज डीसी and output at DC, it is known as a chopper, and there are different types of choppers. Buck, that means stepping down chopper. Stepping up chopper is known as boost converter, buck boost converter, etc. ये कई तरह के fly back, बहुत सारे type of choppers होते हैं, ठीक है. Then second thing, if we convert from DC to AC, then it will be known as inverter. ओके, अब इन्वर्टर भी सिंगल फेज इन्वर्टर हो सकता है, 3 फेज इन्वर्टर हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स होते हैं, 2 लेवल इन्वर्टर होते हैं, मल्टी लेवल इन्वर्टर्स होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स. ओके, देन वी हैव एसी टू डीसी. ओके, एसी टू डीसी व्हिच इज नोन एज रेक्टिफायर. अब रेक्टिफायर भी की क्लासिफिकेशन कई टाइप की हो सकती है. दिस इज द मेजर पार्ट दैट वी विल बी कवरिंग इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 इन दिस कोर्स. ओके, तो रेक्टिफायर्स कंट्रोल हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं. तो बेसिकली सिंगल फेज के टर्म्स में हम लोग सिंगल फेज भी देखेंगे और 3 फेज भी देखेंगे. इफ यू आर हैविंग अ 3 फेज सप्लाई, देन हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डीसी, एंड इफ यू आर हैविंग अ सिंगल फेज सप्लाई, देन हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ डीसी क्वांटिटी. ओके, फिर हमारे पास एसी टू एसी कन्वर्जन है, विच इज ऑल्सो नोन एज साइक्लो कन्वर्जन, और मोस्ट ऑफ टाइम्स ये कहलाता है. लेकिन बेसिकली 2 टाइप के एसी टू एसी कन्वर्जन हो सकते हैं. वन इज दी वोल्टेज रेगुलेशन एंड सेकेंड इज दी साइक्लो कन्वर्जन. वोल्टेज रेगुलेशन में बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज लेवल को वेरी कर रहे हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंसी दोनों देखो, इस साइड पे भी एसी है, इस साइड पे एसी है, राइट. अगर यहाँ पे 230 वोल्ट है और यहाँ पे हमें 110 वोल्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर हमें यहाँ पे 50 हर्ट्ज है और यहाँ पे भी 50 हर्ट्ज चाहिए, then this type of conversion will be known as voltage regulation. Okay, now if we are having 50 hertz over here और मैं यहाँ पे इसको 60 हर्ट्ज कर दूं, मुझे ऐसा कन्वर्टर चाहिए जो कि मुझे यहाँ पे आउटपुट 60 हर्ट्ज पे दे, then we need to go for साइक्लो कन्वर्जन. हालांकि ये गलत है मेरी बात. उसकी वजह ये कि साइक्लो कन्वर्टर्स आर बेसिकली सच कन्वर्टर्स दैट उसमें जो आउटपुट साइड की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल ऑलवेज बी लो, यानी 25 हर्ट्ज की फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रैक्शन वगैरह में होता है. ट्रैक्शन में 16 2/3 हर्ट्ज हमें बेसिकली सप्लाई चाहिए होती है मशीन को रन करने के लिए. ओके, सो one of the application of this is cyclo converters is traction, railway traction. तो अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए we will use cyclo converters, ठीक है. तो जनरली AC टू AC कन्वर्टर्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड साइक्लो कन्वर्जन. साइक्लो कन्वर्जन फर्दर जो डिवाइड होता है वो कई तरीके से होता है, लेकिन एक तरीका ये है कि साइक्लो कन्वर्टर्स बेसिकली उसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है ना. एक एडवांस वर्जन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर होता है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स कन्वर्टर, ठीक है. अभी क्या होता है दैट विल, अगर टाइम मिलेगा तो इसको समझाएंगे, लेकिन अभी इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है. ओके, दिस अगेन इसमें जैसे ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं, अपर फ्रीक्वेंसी पे नहीं, यानी 50 हर्ट्ज से अगर 100 हर्ट्ज का ऑपरेशन करना है तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स कन्वर्टर के अंदर हम ये कर पाते हैं, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू गो बियॉन्ड द सप्लाई फ्रीक्वेंसी वी नीड टू गो फॉर मैट्रिक्स कन्वर्टर. ओके, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ी बात समझ में आई होगी कि हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स को चाहिए और कितने टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स हो सकते हैं. देन अब बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था आप लोगों से. एज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यू मस्ट नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, पहली चीज ये कि स्विचेस को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो क्वाड्रेंट की ऑपरेशन के टर्म्स में करते हैं. बेसिकली सिंगल क्वाड्रेंट स्विच, 2 क्वाड्रेंट स्विच एंड 4 क्वाड्रेंट स्विच.
ठीक है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो पावर की रेंज में और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के एंड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज में बेसिकली, ठीक। कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं, बाय स्विच आई मीन फॉर एग्जांपल आप लोग यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विचेस। फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव स्टडीड द थायरिस्टर्स, you must have studied the IGBTs, you must have studied the MOSFETs, about the MOSFET, and then different kinds of thyristors, okay. So all these things in short term can be termed as switch, okay, and the switch can be controlled or uncontrolled. For example, if I take a diode is uncontrolled, there is no controlling device, controlling terminal in it, but thyristor is a controlled device because it can be controlled through a gate signal, ओके तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हाई पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं, हायर वोल्टेजेस के हाई पावर के लिए, एंड देयर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज लो। फॉर एग्जांपल थायरिस्टर्स आर अप्लाइड इन दोज पोजीशंस वेयर द पावर रेटिंग इज वेरी हाई एंड द स्विचिंग इज लो। अगर पावर रेटिंग मीडियम वोल्टेज है, ठीक है, और लो पावर रेटिंग है या मीडियम पावर रेटिंग है, तो फिर हम जो है IGBTs या MOSFETs यूज करते हैं और उनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी फिर हाई होती है, ठीक है। दोनों के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशंस भी डिफरेंट हैं। नाउ दिस डायोड एज आई हैव रिटन ओवर हियर इट्स एन अनकंट्रोल्ड डिवाइस बिकॉज देयर इज नो कंट्रोलिंग टर्मिनल ओवर हियर, लाइक व्हाट द थायरिस्टर और BJTs, these are controlled device because by applying gate signal we can allow the current to flow from anode to cathode. For example, अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस दूंगा, ठीक है, तो करंट और गेट को मैं सिग्नल दे देता हूं। एक तरीका ये है कि मैं इसके गेट को सिग्नल दूं, या दूसरी चीज ये है कि दिस VAK goes beyond the forward break over voltage, तो मेरा ये थायरिस्टर कंडक्ट करने लगेगा, राइट। और अगर मैं नेगेटिव दूं, कैथोड पे पॉजिटिव यानी रिवर्स बायस करूं, तो ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, इस वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, इस डायरेक्शन में कंडक्शन नहीं हो सकता, राइट। सो दिस टाइप ऑफ डिवाइस बेसिकली, अभी से मैं एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ये कि इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट एंड इट कैन ब्लॉक वोल्टेज इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। इस डायरेक्शन के पोटेंशियल को भी ब्लॉक करेगा और इस साइड के पोटेंशियल को भी ब्लॉक करेगा, जब मैं यहां पे प्लस और यहां पे माइनस रख रहा हूं तब भी। कब तक करेगा? जब तक कि मैं इसको कोई गेट सिग्नल नहीं देता हूं, या अप्रोप्रिएट गेट सिग्नल नहीं देता हूं, या फिर इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, वो VAK जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर ना चला जाए। सिमिलरली वी आर हैविंग अ पावर BJT, ठीक है, यहां पे हम सब पावर की बात कर रहे हैं, हाई पावर रेंजेस की, ठीक है। तो पावर BJT में बेसिकली हम बेस यहां पे जो करंट देंगे उसकी वजह से ये फॉरवर्ड मतलब ये कंडक्ट करने लगेगा इस तरफ, राइट। सो दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस बेस बेसिकली, okay, this is a switch which is being controlled by the base, okay, and this is the switch that is being controlled by the gate, okay. So we are having controlled type of switches and uncontrolled type of switches, okay. तो ये डिस्कस कर लिया था मैंने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपने MOSFET और BJT पढ़ा, दिस इज द पावर MOSFET, सिंबल ऑफ पावर MOSFET, और इसके अंदर इंटरनल एक जो है एंटी पैरेलल डायोड, ये जो है एंटी पैरेलल डायोड है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल डायोड लगा होता है, ठीक है। तो इसका हम अभी डिस्कशन आगे करेंगे। तो दिस बेसिकली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डिवाइस राइट नाउ, ओके, इन दिस डिस्कशन वी आर जस्ट डिस्कसिंग ब्रीफली अबाउट दिस। दिस इज द सिंबल ऑफ IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके। IGBT और BJT, नॉर्मल BJT और IGBT में यही इस चीज का अंतर है, ये जो चीज बनी हुई है, बिकॉज देयर इज अ जंक्शन कैपेसिटेंस, बेसिकली यहाँ पे भी जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करना होता है, इसके ड्राइव करने के लिए अलग सर्किट्स होते हैं, दैट इज अनदर लेवल ऑफ कोर्स, वो बात की बात है, अभी अगर मौका लगेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस इज अगेन बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस बेस, this switch is again being controlled by this gate, okay, ताकि यहाँ पे ये जो है इस जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग में दूं तो इधर की तरफ ये कंडक्ट करने लगे। इसी तरीके से जब मैं इसको बेस करंट दूं तो ये इधर की तरफ कंडक्ट करने लगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको
बेस करंट देना पड़ेगा. दैट मीन्स वी आर दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोल टाइप ऑफ डिवाइस. ठीक है. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्विचेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन. सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन क्या होता है और टू क्वाड्रेंट स्विच क्या होते हैं, लाइक दिस. तो अगर मैं ये देखूं कि डायोड सिंपल जो है वो नॉर्मली अगर मैं इसको यहां पे पॉजिटिव दूंगा और यहां पे नेगेटिव दूंगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा. राइट. वी नीड जस्ट दिस पोलैरिटी और फॉरवर्ड बायस. ठीक है, कि वो आपको पता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, बस उतना वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस आ गया तो इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. ओके. लेकिन रिवर्स बायस में इट विल ब्लॉक द होल वोल्टेज अक्रॉस इट. ठीक है. तो अगर हम देखें तो आइडियल मतलब प्रैक्टिकली जो होता है वो इस टाइप का कर्व जाता है. थोड़ा सा वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, बहुत हाई करंट. आइडियली इट शुड बी कि थोड़ा सा हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, फॉरन करंट, any amount of current should flow through this diode, and when in the reverse direction it should block the voltage. लेकिन normally क्या होता है, it will be blocking to a certain break down voltage, right? तो anyhow power diodes को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि हम हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज को ब्लॉक करे और हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो उसके थ्रू करंट फ्लो कर सके. Are you getting my point? Now coming to the now this is this operation in the second quadrant operation. ठीक है. यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज को ये ब्लॉक करेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट को ये फ्लो कराएगा. बीजेटी, पावर बीजेटी जो होता है वो जब मैं इसको गेट सिग्नल दूंगा, बेस करंट दूंगा तो ये इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर. ठीक है. तो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर इट इज अलाउइंग. ठीक है. लेकिन जब मैं इसको बेस नहीं दूंगा, बेस करंट नहीं दूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यानी इसके अक्रॉस VCE आएगा. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं. राइट. और इस जोन में जब हम जाते हैं, ठीक है, देयर इज बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं. हम लोगों ने देखा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होती हैं. राइट. इस तरीके से बनती हैं बीजेटी की. जब नीचे जाते रहते हैं तो यहाँ पे एक रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, और यहाँ पे ये जो इस रीजन में होता है दैट इज नोन एज सैचुरेशन रीजन. ये वाला जोन जो बीजेटी का कहलाता है दैट इज नोन एज एक्टिव जोन. राइट. इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लोअर पावर की बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वी ऑपरेट आवर स्विचेस इन कट ऑफ जोन और सैचुरेशन जोन. वी डोंट यूज द स्विच और द IGBT और द BJTs इन द एक्टिव जोन. राइट. एम्पलीफायर के तौर पे अगर इसको बीजेटी को यूज करना है देन वी विल गो फॉर एक्टिव जोन. राइट. तो इट विल बी ब्लॉकिंग दिस पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वोल्टेज बेसिकली, क्योंकि हमेशा बीजेटी जो होता है उसमें कभी भी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव नहीं देते, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव देंगे हमेशा. तो जब हम इसको बेस सिग्नल देंगे, बेस करंट देंगे तो ये करंट को अलाउ करेगा, और जब हम इसको बेस सिग्नल नहीं देंगे इट विल ब्लॉक दिस वोल्टेज प्लस माइनस. ठीक है. So this is again a single quadrant switch. This becomes a single quadrant switch, but this is a controlled switch. ठीक है. And it is allowing to it belongs to the first quadrant type of switch. Okay. ठीक है. Yes, first quadrant type of switch है. Now coming to the two quadrant switch, IGBT with anti parallel diode, ये पावर मॉसफेट जिसके अंदर एंटी पैरेलल डायोड जो होता है वो इनहेरेंट होता है, तो उसके अंदर हमारे पास टू क्वाड्रेंट स्विच बनता है. वो कैसे? नाउ जब मैं इसको पॉजिटिव दूंगा और इसको यहाँ पे नेगेटिव दूंगा और मैं यहाँ पे गेट सिग्नल देता हूं तो इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन दिस डायरेक्शन. राइट. और अगर मैं यहाँ पे प्लस देता हूं और यहाँ पे माइनस देता हूं तो क्या होगा? इट विल नॉट ब्लॉक दिस वोल्टेज, इट विल इनफैक्ट अलाउ द करंट टू फ्लो. तो करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है इस डिवाइस के थ्रू. ठीक है. दोनों डायरेक्शन में, प्लस माइनस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है. लेकिन जब मैं ये गेट सिग्नल नहीं दूंगा इट विल ब्लॉक दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज ओनली. क्योंकि जब मैं इधर का वोल्टेज दूंगा इट विल नॉट बी ब्लॉकिंग, इट विल बी कंडक्टिंग. ठीक है. तो कोई वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं आएगा. ठीक है. तो इस डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करेगा. It will only block the voltage in this direction. तो ये this is the two quadrant switch.
ठीक है, तो ये जो है ये दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशन टू क्वाड्रेंट स्विच दैट इज अलाउइंग बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे ही बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को हम ब्लॉक कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं बीजेटी, पावर बीजेटी को या आईजीबीटी विदाउट डायोड को, आईजीबीटी विदाउट एंटी पैरेलल डायोड, यहां पे एंटी पैरेलल डायोड मैंने नहीं लगाया, ठीक है, और मैं इसके सीरीज में लगा दूं, ठीक है, इन दिस फैशन, इसको हम बेसिकली अक्सर लोग जो है इसको एंटी सीरीज डायोड भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर देखो अब मैं यहां पे पॉजिटिव देता हूं और ये नेगेटिव देता हूं, ठीक है, तो और मैं यहां पे बेस करंट दे देता हूं, ठीक है, इसको ऑन कर देता हूं, आई कैन से, तो व्हाट विल हैपन, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड नॉर्मली, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे दूंगा, ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये, जब मैं इस बेस को नहीं दूंगा, ठीक है, देन दिस डिवाइस विल ब्लॉक दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज व्हेन वी आर हैविंग दिस प्लस एंड दिस माइनस। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब मैं करंट नहीं दे रहा हूं तो इट इज अलाउइंग टू ब्लॉक द वोल्टेज आल्सो। ठीक है, जब मैं गेट दूंगा तो द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जब मैं रिवर्स पोलैरिटी दूंगा, यानी यहां पे प्लस दूंगा और यहां पे माइनस दूंगा, तो व्हाट विल हैपन, द करंट विल कैन नॉट फ्लो बिकॉज डायोड इज इन रिवर्स बायस, चाहे मैं यहां पे गेट दूं या ना दूं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउइंग the flow of current in only one direction, but it is allowing the blockage of voltage in both the directions. ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज को हम ब्लॉक कर सकते हैं और करंट इस डायरेक्शन में, राइट। नाउ नेचुरली अकरिंग, इसको तो फोर्सफुली करना पड़ रहा है, राइट। अब ये देखो थायरिस्टर को याद करो, अभी हमने डिस्कस किया था, तो अगर मैं इसको गेट सिग्नल दूंगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो करंट मेरा नॉर्मली इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो ये करंट फ्लो जो हुआ कंट्रोल्ड हुआ, राइट। और अगर मैं ये गेट सिग्नल नहीं दूं तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस आता रहेगा जब तक कि ये वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर ना चला जाए, राइट। और जब मैं गेट नहीं दूं और फॉर एग्जाम्पल मैं रिवर्स बायस कर दूं तो क्या होगा, रिवर्स बायस में तो ये ब्लॉक करेगा ही करेगा। ठीक है, सो इट कैन ब्लॉक द वोल्टेजेस इन बोथ द डायरेक्शंस and the current can flow only in one direction. So single device, देखो ये जो है टू डिवाइस, this type of switch, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, this configuration basically is also known as, I should remove this basically is known as composite switch. क्यों? क्योंकि दो मिलके बना है ये, एक बीजेटी और एक डायोड। ठीक है, ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट इज द 4 क्वाड्रेंट स्विच। अब इस क्वाड्रेंट इस स्विच में हमारे पास क्या दिक्कत है, वो ये कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल थे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट स्विच मतलब कि ऐसा स्विच जो दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को भी ब्लॉक करे और दोनों डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट भी हो उसके थ्रू। ठीक है, तो ऐसा स्विच एज सच अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट सच अ कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग द डिवाइसेस दैट आर अवेलेबल टू अस। मैंने यहाँ पे सिंपल आईजीबीटीज यूज किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक आईजीबीटी को लूं, दिस इज वन आईजीबीटी, ठीक है, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। So let me choose this. Okay. One second, please. Sorry for disturbance. तो ये जो स्विच है, दिस इज वन आईजीबीटी। अगर मैं इसी दूसरा आईजीबीटी लूं और उसको उल्टा लगा दूं, ठीक है, इसके एमीटर को इसके एमीटर से मिला दूं, तो दिस विल बेसिकली व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम अ 4 क्वाड्रेंट स्विच। कैसे, देखिए
जब मैं इसको ऑन करूंगा, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। जब मैं इसको ऑन करूंगा, ठीक है, लेट इट बी ऑन, ठीक है, तो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन विद दिस डायोड लाइक दिस। और जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये इसको फॉलो करता हुआ ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऑफ कर दूंगा, ठीक है, तो इट विल ब्लॉक दिस वोल्टेज, ठीक है। और जब मैं ये वाला पोलैरिटी लगाऊंगा, ठीक है, जब मैं ये वाली पोलैरिटी लगाऊंगा तो ये डायोड्स रिवर्स बायस हो जाएंगे एंड इट विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। तो बेसिकली इट कैन ब्लॉक बोथ द वोल्टेजेस एंड बोथ द करंट। सिमिलरली दूसरे तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दिस इज, क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्टर को मिला रहे हैं तो दिस विल बी नोन एज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज येट अनदर कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको खुद देखें कि कैसे ये करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन दी बोथ द डायरेक्शंस एंड इन बोथ दी, एंड इट इज ब्लॉकिंग द वोल्टेज इन बोथ द डायरेक्शंस। ये एक डिवाइस जो नया बना है, कुछ साल हो गए इसको यूज आते हुए। दिस डिवाइस इज बेसिकली, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, बेसिकली ये एक पैकेट में आता है, एक पैकेज में आता है, ठीक है। दिस इज नोन एज रिवर्स ब्लॉकिंग IGBTs, ठीक है। और ये, अच्छा, ये जो स्विचेस हैं बेसिकली, दीज आर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज्ड इन मैट्रिक्स कन्वर्टर्स, जो मैंने अभी पहले नाम लिया था साइक्लो कन्वर्टर्स का। उसका स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स कन्वर्टर्स। हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका जरूर दूंगा मैं इन दी एंड व्हेन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लो कन्वर्टर्स, ठीक है। सो आई विल, और अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट वाज ए टॉपिक, दैट इज द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। हमने देखा कि वी आर हैविंग, द सोर्स एंड द लोड, और सोर्स और लोड में मिसमैच है, राइट। जब सोर्स और लोड में मिसमैच है ना, तो वी आर यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, राइट। तो अगर ये हो सकता है कि हमारे पास इस साइड पे डीसी हो, इस साइड पे एसी हो, इस साइड पे एसी हो, इस साइड डीसी हो, या आपस में इंटरचेंजेबल जो भी चीजें हैं, जैसा भी कन्वर्टर हमने डिजाइन किया है, ठीक है। अब ये चीज आती है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है, या इनपुट करंट या आउटपुट करंट या इनपुट वोल्टेज, ये सारी की सारी फॉर एग्जाम्पल आइडियल है कि नहीं, या आइडियलिटी से कितनी दूर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ कन्वर्टर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल सिंगल फेज है, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई में यहां देता हूं, तो इट विल बी गिविंग मी अ डीसी सप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं देखूंगा तो इट विल बी अ पल्स टाइप ऑफ डीसी, ठीक है, अ पल्स टाइप ऑफ डीसी, ठीक है। तो अब ये वोल्टेज, ठीक है, इस आइडियल डीसी वोल्टेज के कितने करीब है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं और क्या क्या डिस्कस करना चाहिए बेसिकली। तो पहली चीज, अच्छा, अब ये चीजें साइनोसॉइड से रिलेटेड हैं, या आइदर वी रिक्वायर प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म और परफेक्ट डीसी, ठीक है। ये डिपेंड करता है, मतलब फॉर एग्जांपल कहने का मतलब मेरा ये है, कंफ्यूज करने का मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आउटपुट एसी के फॉर्म में है तो हमें प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। और अगर आउटपुट डीसी के फॉर्म में है तो जो हमारी जो आउटपुट है दैट शुड बी परफेक्ट डीसी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन परफेक्शन से हाउ मच वी आर डेविएटिंग, हाउ मच we are from the perfect behavior, perfect desirable behavior, ठीक है। that is
व्हाट वी नीड टू स्टडी, और उसके लिए जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके लिए हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक अगर साइनोसॉइड की बात करें तो वी कैन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और वी कैन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में हम बात कर लेंगे, तो जब हम इसकी बात कर लेंगे तो करंट की ऑटोमेटिकली बात हो जाएगी, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनिक्स, व्हाट आर हार्मोनिक्स, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट द पावर फैक्टर, ठीक है। देन जैसे मैंने यहां पे दिखाया, अब यहां पे एक टाइप की एक चीज मैं क्या कह सकता हूं, इसको यहां पे देयर इज अ रिपल, यहां पे वर्ड सकता है रिपल फैक्टर, ठीक है। देन वी हैव फॉर्म फैक्टर, ठीक है। देन वी हैव THD, दैट इज रिलेटेड हार्मोनिक्स, ठीक है। और फिर डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो सारी की सारी चीजें ये बता रही हैं हमें कि हम बेसिकली आइडियलिटी से कितनी दूर हैं, ठीक है। जो आइडियल होना चाहिए उससे हम कितना दूर हैं। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।